Hello, dear students. Welcome to Divya Brahmalok Global Academy. Let's learn something new in value education. And I am your teacher, Vedahi ma'am. This is your textbook, The Salt in Life for Class 6, Value Education and Life Skills. And today we will start with a new chapter, that is chapter number 5, The Two Kings. This is part 1 of the lesson in which we will be doing the explanation. This is the chapter number 5, The Two Kings, and what value it asks us to develop in ourselves is the value of politeness. ये जो स्टोरी है, it sets an example the value of being polite. Polite होने के क्या फ़ायदे होते हैं and how you can develop, how you can win others' heart just by being polite. See, treat everyone with politeness, even those who are rude to you. अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो भी आपको उनके साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए, सॉफ्टली बात करनी चाहिए. आपको लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए. नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू आर. और आप ऐसा क्यों करोगे? इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला इंसान अच्छा है, बट इसलिए क्योंकि आप अच्छे हो. ओके? So, what are the things mentioned over here? Do you speak politely to everybody? क्या आप सभी के साथ आप प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करते हो? आप अपने घर की कामवाली के साथ भी पोलाइटली बात करते हो? बोलो. Do you speak rudely at home if you find your things misplaced? देखो, गलती चाहे किसी की भी हो, पर अगर आपकी चीज़ कहीं खो गई तो क्या आप चिल्लाने लग जाते हो मम्मी पापा पे, भाई बहन पे? सोचो तो. डू यू हेल्प पीपल इफ रिक्वायर्ड? सी इफ एनीबडी इज़ इन नीड ऑफ समबडीज हेल्प, और अगर आपको वो ना भी बोले कि आप मुझे हेल्प करो, तो भी क्या आप सामने से जाके लोगों की हेल्प करते हो? या फिर वो बोले तो भी करते हो, या यू रिफ्यूज़ टू हेल्प देम? सोचो. So, what you need to learn from this chapter is a polite person is always respected. Soft and polite person is loved and respected by all. Politeness makes a person kind and gentle. जो भी इंसान पोलाइट वे में बिहेव करेगा वो काइंड होगा, दिल का बड़ा साफ होगा, वो जेंटल होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा. पोलाइटनेस विंस द हार्ट ऑफ ऑल. प्यार से अगर आप सबसे बात करोगे तो आप आसानी से किसी का भी दिल जीत सकते हो. सो हियर गोज द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू किंग्स. यहाँ पर दो राजा की बात की गई है, किंग सैमुअल एंड किंग एलिस्टेयर. व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू किंग्स? किंग सैमुअल एंड किंग एलिस्टेयर. Their kingdoms were next to each other. Now both the kings, they were ruling next to each other. बाजू बाजू में ही उन दोनों का राज्य था. They were not very friendly terms. उनके दोनों के बीच में कोई इतनी अच्छी दोस्ती, उनके बीच में कोई अच्छा सा व्यवहार नहीं था. King Samuel was a rude and impolite man. ये जो King Samuel जो आप देख रहे हो, he was very rude. He never used to behave in a polite manner. He always used to shout. He always used to scold the people. He never listened to his subject. Whosoever comes to King Samuel for help, King Samuel refused to listen to the person. कुछ भी सुनते ही नहीं थे. किंग सैमुअल अपनी ही मनमानी करते थे. He always screamed and pointed fingers at people. हमेशा देखो कैसे चिल्लाते रहते थे और दूसरों पे उंगली उठाते रहते थे. Means he used to blame other person for any of the problems.
He always had a frown on his face. उनके गुस्से चेहरे पे ही एकदम ऐसे गुस्सा लगा हुआ रहता था. लुक एट हिज आईब्रोज, देखो कैसे ऐसे रिंकल्ड आईब्रोज हो गई है. क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पे बड़ा गुस्सा था. He was disliked by everyone in his kingdom. Why? Because he was very rude. King Alistair, on the other hand, was kind. ये जो दूसरा राजा एलिस्टर था वो दिल का बड़ा अच्छा था, नेक दिल था. He was gentle and polite. सबसे प्यार से बात करता था. He never shouted at anybody. He never interrupted people when they were talking. ये जो किंग एलिस्टर था वो जो भी इंसान आता था उसकी बात ध्यान से, शांति से, बिना बीच में रोके टोके सुनता था. He listened to his subject and worked for their good. ये जो किंग एलिस्टर है वो शांति से सबकी बात सुनता था, प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकालता था, so that he can make the people of his kingdom happy. His subject had a strong sense of respect for him. They always stood by him. And because of the kindness of the king, because of the politeness of the king, because of the attitude of the king, the people of his kingdom always used to love King Alistair. They were always ready to help and support King Alistair. It so happened that one day King Samuel, जो कि बड़ा रूड था, declared a war against King Alistair. अब एक रूड इंसान से और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? He will find one or the other way to fight with you. So King Samuel ने भी यही किया. उसने King Alistair पे धावा बोल दिया. But both sides prepared their armies for the war. अब ये जो किंग एलिस्टर था वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं था. उसने भी अपनी आर्मी तैयार कर ली किंग सैमुअल की तरह. ऑन द डे द वॉर वॉज सपोज टू बिगिन, द टू आर्मीज स्टूड ऑन द बैटल फील्ड फेसिंग ईच अदर. अब जिस दिन लड़ाई होनी थी दोनों किंग की आर्मी आमने सामने आ गई. कहाँ? बैटल फील्ड, रण मैदान में, एक दूसरे के सामने. King Samuel shouted and ordered his army to begin the attack. King Samuel ने क्या कहा? अपनी आर्मी को बोला आक्रमण. मतलब कि वो चाहता था कि he wanted his soldiers to attack on King Alistair's army. But something strange happened. The soldier did not move even a finger. King Samuel kept on screaming and repeating his orders, but in vain. जैसे किंग जो सैमुअल था वो लोगों की बात को सुनता ही नहीं था. इन द सेम वे आज क्या हुआ कि किंग सैमुअल की जो ऑर्डर थी, उसकी जो पुकार थी, उसकी बात थी, वो किसी भी सोल्जर ने सुनी ही नहीं. ऑल हिज ऑर्डर्स वर इन वेन, मतलब कि वो सब व्यर्थ था. करने किंग सैमुअल के ऑर्डर का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. द आर्मी रिमेन्ड वेयर इट वॉज एंड स्टबर्नली रिफ्यूज टू फाइट. स्टबर्नली मतलब ज़िद्दी होकर किंग सैमुअल की आर्मी वहाँ पर चुपचाप खड़ी हुई. एंड विद दिस बिहेवियर दे वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज टू King Samuel that they are not ready to fight for King Samuel, on behalf of King Samuel. King Samuel was let down by his army because they never heard a polite word from him. Now why this happened? Because ये जो आर्मी थी उन लोगों में बड़ा गुस्सा भरा हुआ था. क्यों? क्योंकि उनका राजा उनसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था. King Alistair won the battle and started ruling over both the kingdom. अब इससे ये हुआ कि किंग एलिस्टर जीत गया और उसने किंग एलिस्टर जो किंग सैमुअल का किंगडम है वो भी किंग एलिस्टर ने अपने कब्जे में कर लिया. He was loved by all and it was all because of his politeness and gentle behavior. अब
जो दोनों किंगडम के लोग थे, दे वेर लविंग एंड रिस्पेक्टिंग किंग एलिस्टर. वाई? बिकॉज किंग एलिस्टर वॉज अ काइंड पर्सन, kind ruler, and he was very gentle as well. So अभी पता चला ना आपको कि पोलाइटनेस, ये अगर आप पोलाइट रहोगे, इफ़ यू डेवलप क्वालिटी वैल्यू ऑफ पोलाइटनेस, तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है. सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू टेक एन ओथ दैट यू विल develop a value of politeness in your life. Okay, bye bye.